See, I'm just starting now because now the screen is showing, na? Yes, yes. Yes, sir. Oh, okay. See, the what is called budget? Budget is the one which is helping us to achieve the goals, and we have certain goals. The budget helping to translate our goals into the numbers, into the quantitative figures, because the quantitative can be managed, can be monitored, can be checked. So that what the budgeting help us. So the reasons comes why we need the budgeting. The budgeting is come for the planning because we want to achieve something. अगर हमको जिंदगी में कुछ करना है, we should have a plan. तो budget हम लोग को help करता है to achieve the plan. Then said that budget is for the communication. Budget जो होता है ना, we are through the budget we are communicating to the stakeholders, the one who is interested with our things in our like goal. I need to communicate. So the budget help us to communicate to the stakeholder. And then monitoring is like, it's like whatever we perform we are comparing and we check whether we are working in the right directions or not. That what the budgeting helps. तो budgeting हमको monitoring tool की तरह भी काम करता है. And finally budget मेरे को help करता है evaluations. Once the things finish we will compare with the budgets कि हमने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया. दैट वाज वी कॉल इज इवैल्यूएशन. फिर जब हम नेक्स्ट ईयर में कोई बजट बनाएंगे या नेक्स्ट कोई भी बजट बनाएंगे, इवन क्वार्टरली बजट बनाए या मंथली बनाए या ईयरली बच रहा है, तो मेरे को इट विल हेल्प मी कि अब आगे जो बजट बनाऊंगा तो ये जो मैं यहाँ पे जो भी डिफिशियंसीज थी या जो भी कमी थी वी विल ट्राई टू ओवरकम. So this works as an evaluation also, so that it gives an idea कि हम कहाँ पे आते हैं, where we stand, and based on that we can plan future. Now when the third thing is come the budget and the control cycle, how the budget actually starts and how it's being performed. तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ें होती है वो क्या होती है कि हम एक मास्टर बजट बनाते हैं. वी क्रिएट द मास्टर बजट. जैसे ही मास्टर बजट बनाते हैं हम फिर मैनेजमेंट्स को अपने लूप में लेते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट अगर लूप में आ गया, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट का आपको इंटरवेंशंस कहो या फिर उनके बिना सपोर्ट के यू कैन नॉट रीच टू द गोल. सो यू नीड टू टेक हिम इन द लूप. Then you would analyze the current performance versus the expectation. What you are expecting, what is the current performance you are analyzing. तो ये आपके बजटरी प्रोसेस में आ जाता है. यू आर एनालाइजिंग, ओके हमारे पास हमको 14 पीपल्स चाहिए इफ वी वांट टू अचीव दिस टारगेट, एंड नाउ यू हैव करेंटली से 12 पीपल. तो आप क्या करोगे, आप 2 बंदे हायर कर लोगे एंड दैट 2 पीपल विल हेल्प यू टू अचीव. So that what you analyze here. Then you will analyze the variation. So you analyze, okay, this is the variation. Then you have to take the actions. Then you will hire these 2 people, and then after you will obtain the feedback and the revised plan. But after adjusting these numbers, you will have the feedback from the stakeholder, from the interested persons, and then you will execute the plan. So this how the budget works in any company. This is the process actually they follow. Even though this is see it is documented, that's why हम लोग इसको स्टेप टू स्टेप समझ पाते हैं, वरना हर कंपनी पे ऐसे ही काम होती है. वो एक आइडिया लेके आते हैं, फिर आइडिया मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने के बाद वो लोग करंट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं क्या वेरिएशंस है, अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान करते हैं, और उसके बाद उसको फिर से रिव्यू करके चेक करते हैं वेयर वी आर नाउ. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं एज अ बजट और कंट्रोल साइकिल पे. नाउ क्वेश्चन आती है कि कंपनी है जो बोलती है कि आई एम यूजिंग बजटिंग एज अ प्लानिंग टूल, बट नाउ आई वांट टू यूज एज अ कंट्रोलिंग टूल. सो मेरे पास आप बताओ कि व्हाट शुड आई डू. तो सबसे पहले अगर वो एज अ प्लानिंग टूल यूज कर रहा है, नाउ दे वांट एज अ कंट्रोल टूल. देखिए प्लानिंग जो होता है वो काम के एग्जीक्यूशन के पहले है. कंट्रोल जो होता है जब काम एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप उसकी वेरिएशंस चेक करते हो. दैट व्हाट वी कॉल द कंट्रोल. तो आपने काम पहले प्लान कर लिया,
प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। मान लो आपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे 10,000 के खर्चे आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लिए थे, ऑलरेडी आपने बजट बनाए थे, लेकिन ये 10,000 से 10,000 के अंदर है, वेदर इट इज इन 9,500 और वेदर इट इज गोइंग 12,000, who will monitor? This control should be from the budget itself. This can only be possible when your budget is synchronized with your accounting system. जब आपकी सिस्टम के साथ ये जब सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी, then only you will able to have a control. Okay, 10,000 के बजट को एक्सीड नहीं किया, 10,000 के अंदर में बजट है, it means okay, it's working fine. This is just a comparison, but if it is synchronized with your accounting system, then it can be possible. Otherwise आपको एक manual reconciliations बनाने पड़ते हैं. So that how the budget work as a controlling tools. फिर हमारे पास क्वेश्चंस बनता है कि आप बताओ कि ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस गोल्स कैसे काम करते हैं। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक जो डायरेक्शंस होते हैं, जो ऊपर के बंदे होते हैं, एक्चुअल में मैं आपको बंदे की पिरामिड बता रहा हूँ कि हाउ द बंदे, तो बंदे की पिरामिड जो है ना, आप इसको 3 लेवल पे बांट लो। एक होता है अपना टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल पे। तो हमने जो टॉप लेवल पे बंदे होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, जो मिड लेवल के बंदे हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये क्या होते हैं, दे वर्किंग लाइक अ ब्रीज, इन दोनों के बीच पे दे वर्क्स। एंड जो लोअर लेवल के बंदे होते हैं ये ऑपरेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके हर सारे काम ये करते हैं। ये रिपोर्टिंग्स में मेनली डील करते हैं, रिपोर्टिंग एनालाइजिंग पे डील करते हैं, एनालिटिक्स बनाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं हायर अथॉरिटी को कि क्या मतलब हाउ द परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन। और नीचे वाले बंदे जो होते हैं वो ऑपरेशनली काम करते हैं कि ताकि बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, दैट व्हाट इज कॉल्ड द ऑपरेशन लेवल। तो ऑपरेशन लोअर लेवल पे ऑपरेशनल वर्क होता है, मिडिल पे एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, टॉप पे स्ट्रैटेजिक वर्क होता है। स्ट्रैटेजिक वर्क वो होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो दोनों चीज़ें दिमाग पे रखता है। दे ऑलवेज कंसीडर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, वो दोनों चीज़ें अपने साथ साथ लेके चलता है। बोलता है कि स्ट्रैटेजिक जो डिसीजंस होता है प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्लानिंग एंड सपोर्ट्स। वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग एंड सपोर्ट्स एक्टिविटीज देते हैं, बट जो उसकी एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग जो होती है, क्लोजली मॉनिटरिंग यू कैन से दैट, तो वो मिड लेवल और लोअर लेवल के बंदे करते हैं। ठीक है। बजटिंग फैसिलिटेट द मूवमेंट टुवर्ड द गोल्स। द बजटिंग हम लोग को क्या करता है, whether we are moving in the right directions or not, that how the budgeting help us to understand। तो बजट हमको ये सारी दो चीज़ें हमें बताती है कि हम, और बजट जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस जो हो सकते हैं वो लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लान भी हो सकते हैं, और साथ साथ में हमारा ईयरली प्लान भी होता है। तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस इज वर्क इन बोथ द वे, for the long term business as well as for the short term business, but बिजनेस के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के कारण ये सारी चीज़ें वो स्ट्रैटेजिक गोल पे आ जाते हैं, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस पे आते हैं। अब आता है कि अगर आपके पास कोई एक बजटिंग सिस्टम है तो आप उसको कब सक्सेसफुल मानेंगे और कब आपको लगेगा कि इट इज़ वर्किंग इन द राइट डायरेक्शंस। तो हमारे पास देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू नो कि इफ दीज फीचर्स आर देयर in the budget, then only we will able to perform well, otherwise we will miss something। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन होने चाहिए। अगर हमारा बजट डिफरेंट डायरेक्शंस पे काम करता है और हमारी कंपनी के जो एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंट डायरेक्शंस पे है, तो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, द बजट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मोर। उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम इसको ये करते हैं कि इसमें हमारे पास जो रियलिस्टिक नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको N5 पता होना चाहिए, आपको ज़्यादा ये सारे नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट 5, इसमें से 5 नंबर्स पते होने चाहिए, ताकि आप जब वेन यू आर आंसरिंग इन ऐसे तो यू कैन राइट इट प्रॉपरली, आप उसको लिख सके हो कि आपकी जो बजटिंग होनी चाहिए शुड बी अलाइन विद द कॉर्पोरेट होनी चाहिए, उसके नंबर्स रियलिस्टिक होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, सपोर्टेड होने चाहिए, उसके बाद बी परसीव्ड एज अ प्लानिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग टूल की तरह होने चाहिए, बी सीन एज अ इंटरनल कंट्रोल एंड मोटिवेटिंग टूल्स होने चाहिए। अब बजट जो होता है वो आपको मोटिवेटिंग करता है, क्योंकि बजट हमेशा बजट शॉर्ट हो जाएगा तो बंदे क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो जाते हैं हर बार। इफ दे हैव टू पास सम एंट्री, इफ दे हैव टू डू सम गुड फॉर द बिजनेस, दे विल
feel demotivated if the budget is not there. तो बजट उनको मोटिवेट भी करता होता है. साथ में आपके पास एक डिटेल्ड बजट होने चाहिए so that you can understand and आप एनालाइज कर सको कि which budget is for the value added activities, which budget is for non value added activities. So it should be in detail. साथ में आपको मैनेजमेंट बाय इन करना पड़ेगा. It means you need to involve the management so that you can be achieving the budget. ये अप्रूव्ड होना चाहिए. बी फ्लेक्सिबल बट नॉट बी चेंज, यानी फ्लेक्सिबल होने चाहिए बिकॉज चेंज फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि एकदम रिजिड नहीं होने चाहिए. दे शुड अकोमोडेट द रीजनिंग, वो होने चाहिए. बट चेंजेबल ऐसे नहीं, ऐवे ही नहीं होने चाहिए कि कोई भी बंदा आएगा एक नंबर्स चेंज कर देगा. दैट शुड नॉट बी द फीचर्स ऑफ द बजट. बजट जो है, क्योंकि बजट वी आर यूजिंग एज अ कंट्रोलिंग टूल्स ऑल्सो, मॉनिटरिंग टूल्स ऑल्सो, सो वी कैन नॉट बी अ सच इजली चेंज. बट बजट में चेंजेस को अकोमोडेट करने का प्रोविजंस होने चाहिए. तो दैट व्हाट शुड बी अ गुड सक्सेसफुल, इफ वी वांट टू हैव अ सक्सेसफुल बजट वी शुड हैव ऑल दिस थिंग्स. So as of now we have read about what is budget, how the budget works, how the budget is being planned. Is there any question until now? I don't know if you have any question. Can you just tell me? ताहिर भाई, तौहीद भाई बताएं, कुछ प्रॉब्लम हुआ until now? सर वही ये बजट तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये क्या कंपनी, ये क्या प्री प्लान होता है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट को करना पड़ता है सर? मतलब स्टार्टिंग से ये बजट प्लानिंग कैसे होता है एक्चुअली? ये ऑलरेडी मतलब हेलो हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर. हेलो नहीं, what is going? I am audible. वहाँ बस वही बात थी सर कि ये बजट जो मैं पूछना चाह रहा था कि हमको ये क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल होता है कि स्टार्टिंग से बजट बनाए, जैसे कि ABC होता है ना वैसे, या हमको बस सपोर्ट करना है कुछ? नहीं, बजट एक्चुअल में होते हैं दो तरह के, आपको वो पता होना चाहिए. द फर्स्ट काइंड ऑफ बजट इज कॉल्ड authority budget, which is directly flow from the management. You just need to adhere. You don't do anything there. You just adhere. Whatever he said, that is the final. There is some budgets called participating budgets, where you peoples, where the management accountant, where the other divisional heads are being involved to prepare the budgets, because they will give the reasoning why they are keeping this budget, why the sales and distribution is for 10,000. They will give you the reasoning and you will incorporate. So this is not the sole work which the management accountant do, but the management accountant is just compiling the numbers from the various departments and putting into the format, because he don't know, he cannot predict the actual scenario. The actual scenario can be predicted by the real owners of that part of that division, because they knows the what is going up, what is going down. That what we will read there further, how the budget is being, who is the one, the budget prepares, how the budget is being prepared. All these things we are going to read later. So these are the basic things what we have read now. Now we will go for further. So these are the things we should have in the right budget. So what is come here, कि when say that कि if you want to achieve the success in your business, your top management should be involved in the, your top management should be involved. Okay, HP, thank you. So when we say that if you want to achieve the budgets, okay, if you really want to achieve, so you need to involve your management from not only the preparations, but in the process of communicating the goals, including the budget process and to communicating the goals. If the top management is involved, then the things will work fine.
top management क्या करता है, it's ultimately responsible for its budgets, and it is the primary means of exercising its responsibility to ensure that all level of the management understand and support the budgets and overall budgeting control process. The budgets play a role for the measuring the performance against the established goal. तो अगर मैंने कोई एक गोल सेट किया हुआ है, जो कोई पहले से गोल है, तो बजट मेरे को हेल्प करता है, और साथ में बजट मेरी मॉनिटरिंग टूल्स है, तो मेरे को टाइम टू टाइम गाइड करता होता है, मॉनिटर करता होता है कि वेदर वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये बजट का एक अपना फीचर्स है। अब बजट्स में चीज़ें, अब मैं आपको एक चीज़ें बनाता हूँ कि आपके बिजनेस में 3 तरह से यूनिट्स होते हैं, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉस्ट सेंटर। सबसे पहला कॉस्ट सेंटर ये होता है कि हम इस पे कॉस्ट को जमा करते हैं, वी अकोमुलेट द कॉस्ट। अब यहाँ पे हम कॉस्ट को लाके जमा करते हैं। अब इसका एग्जांपल्स होता है HR है, फाइनेंस है, प्रोक्योरमेंट है। दीज आर द डिविजन्स जहाँ पे, दीज आर द कॉस्ट सेंटर जहाँ पे हम लाके कॉस्ट को एकोमुलेट करते हैं। लेटर बेस्ड ऑन द बेसिस, सर्टेन बेसिस हम उसको अलोकेट करते हैं हर डिपार्टमेंट को, जिस तरह से उसका जो भी उसका फैक्टर्स होगा, जो भी उसके कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे, उसके बेस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट जो कॉस्ट सेंटर का जो काम होता है, जहाँ पे हम कॉस्ट को लाके एक्यूमुलेट करते हैं, दैट व्हाट वी कॉल द कॉस्ट सेंटर। देन एक चीज होता है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर्स वो होता है जो हम लोग के लिए रेवेन्यू जनरेट करके लाता है, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स लेते हैं, सेल्स डिविजन्स है, हम लोग का सर्विस डिविजन्स है। दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अस टू गेट द बिजनेस। सो ये हमारे वो डिविजन होते हैं। एंड देयर इज सम कॉल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे एक डिविजन्स का नाम नहीं है, दैट आई एम राइटिंग नाउ, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट डिविजन्स। प्रॉफिट सेंटर्स क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर्स वो होता है जिसमें अपने उसको एज अ न्यू सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह आप ट्रीट करेंगे, दैट यू विल कंसीडर एज अ न्यू सेपरेट बिजनेस यूनिट। और वहाँ पे क्या होता है, आप रेवेन्यू भी लेते हैं और अपने कॉस्ट भी लेते हैं। वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है उसके मैनेजर्स की, वो प्रॉफिट से मेजर की जाती है कि वो डिवीजन या वो यूनिट कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया। अब जो कॉस्ट वाला सेक्टर है, उसमें उसके जो मैनेजर्स है, उसकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, वो कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन से की जाएगी। रेवेन्यू वाले जो सेक्शंस में जो मैनेजर्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, दैट विल बी ऑलवेज बेस्ड ऑन के वो कितना रेवेन्यू इंक्रीज किए, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज क्या है उनकी। एंड द लास्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर्स की तरह होता है, इसके पास अपने सारे कॉस्ट यहीं पे चार्ज होते हैं, सारे रेवेन्यू हम लोग यहीं बुक करते हैं, और यहाँ पे जो हम परफॉर्मेंस जो उसके मैनेजर्स की इवैल्यूएट करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे काम करते हैं, दे आर द इंडिपेंडेंट। और साथ में उनकी जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस का टाइम आता है, देन वी डू परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस। सो अब हम बातें करते हैं कि अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि देखिए टाइप ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ सेंटर हमारे पास क्या क्या होता है, जिसको हम लोग SBU बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स बोलते हैं। तो उसमें हमने कॉस्ट सेंटर्स लिया था, बोला कि यहाँ पे सिर्फ हम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, लाइक प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस। रेवेन्यू में क्या होता है, डिस्टेंस रेवेन्यू में क्या होता है, जहाँ पे वी अकोमुलेट द रेवेन्यू, और उसके जो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस होती है इज द रेवेन्यू जनरेटेड अगेंस्ट द टारगेट। ठीक है, देयर में बी कॉस्ट बट द कॉस्ट आर नॉट कंसीडर्ड। अब जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट सेंटर्स वाले के पास जाके अकोमुलेट होता है, तो द कॉस्ट यू आर नॉट कंसीडरिंग। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट सेंटर, द प्रॉफिट सेंटर इज अ डिस्टिंक्ट सेगमेंट, जहाँ पे हमारे पास कॉस्ट भी आते हैं और रेवेन्यू भी आते हैं। तो हम इसको एज अ सेपरेट यूनिट की तरह यूज करते हैं, हम सेपरेट बिजनेस यूनिट इसको मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रॉफिट सेंटर की तरह क्रिएट करते हैं। और जो सेगमेंट मैनेजर्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, वो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी कि नेट प्रॉफिट पे उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है। द लास्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहाँ पे क्या होते हैं, इट इज द डिस्टिंक्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम प्रॉफिट सेंटर्स की तरह ही यूज करते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेक द पावर, दे हैव द पावर टू मेक द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट। और उसकी जो मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस होती है, वो बेस्ड ऑन द ROI होती है, बेस्ड ऑन द ROI होती है। टिपिकली ये जो होते हैं, दिस इज लाइक अ प्रॉफिट सेंटर की तरह होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जो अपना जो मतलब जो हमारा रेवेन्यू सेंटर्स है, उसके अपने इनकम स्टेटमेंट हो सकते हैं। रेवेन्यू जो हमारे
रेवेन्यू सेंटर्स हैं उसके अपने इनकम स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनकी अपनी एक बैलेंस शीट बन सकती है। तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन की ज़रूरत तो है नहीं, तो आई जस्ट कट दिस। सो हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक चीज़ें ये हुई, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और देयर परफॉर्मेंस इज बीइंग एवेलुएटेड बाय आरओआई। और ये आरओआई एनपीवी में भी हो सकती है, पीआई में भी हो सकती है। पीआई स्टैंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। हिज परफॉर्मेंस इज कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस नंबर्स ऑल्सो। सो और एक चीज़ें अब मैं आता हूँ कि यहाँ तक हमारे सेगमेंट्स चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आता है बजटरी स्लैक्स। तो बजटरी स्लैक्स क्या होता है कि जब आप कोई बजट्स बनाते हैं और मान लो कि आपने एक बजट बनाया, यू हैव मेड सम सर्टेन बजट्स, और बजट्स बनाया फॉर 10,000 का, और उस बजट पे क्या हुआ कि यू एक्चुअली इनकर्ड 10,100. So the budget will not allow you to post these expenses. So if you want, in order to post these expenses, you have to insert the slack. So that what is called the extra money in the budget to accommodate the unexpected budget, to fill the cumulative to the sub level to the ठीक है। तो जो हमने क्या लिखा था कि ये एक्स्ट्रा जो 100 आप उस पे बजट पे इंसर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द स्लैक। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद इसके जो नुकसान होते हैं, इससे क्या होती है, आपकी बजटिंग फेल हो जाती है। और साथ में क्या होते हैं कि इस जब आप स्लैक्स बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं तो आपकी जो मास्टर्स बजट होती है वो अपना एग्जिस्टेंस खो देती है, एंड दैट बिकम इनएक्यूरेट। फिर आपको लगता है वो सारे नंबर्स तो रिवाइज्ड है, सारे एडजस्टेड है, तो फिर आपकी बेस बजट खराब हो जाती है। सो बट द बजटरी स्लैक्स दे हैव आस्क्ड इन ऐसे क्वेश्चन, आई हैव सीन इट। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बजटरी स्लैक्स ये होता है कि इट इज एन एक्स्ट्रा दैट व्हाट यू insert, what you add in the budget to accommodate the unexpected changes, unexpected happens. So ये आपको उसमें हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ द बजटरी फ्लेक्स वर्क। और बजटरी फ्लेक्स जो वर्क करता है वो किसी मतलब नॉर्मल जो अकाउंटिंग या एंट्री लेवल का बंदा के पास राइट नहीं होता बजट को एडजस्ट करने का। वो उसके ऊपर जो बंदा मैनेजर में बैठे होते हैं उनको होता है, वो भी सर्टेन लिमिट्स तक होता है। ठीक है। तो दैट वो हाउ द बजटिंग वर्क्स। उसके बाद जो होता है बजटरी फ्लेक्स वर्क्स। उसके बाद अब हम आते हैं कि मैनेजमेंट जो है तो कंट्रोल्स कैसे होते हैं, मतलब हम जो बजट बनाते हैं, दैट वो 5 मिनट्स बिफोर आई थिंक तौहीद आस्क्ड कि हाउ द बजट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑथोरेटिव, दूसरे होते हैं पार्टिसिपेटिंग। जो ऑथोरेटिव होते हैं वो इज सेट बाय द मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट का बंदा आया, उसने एक नंबर्स डिसाइड किया, आपको सीधे बोल दिया भाई साहब, उसने बोला कि आपको जो है नंबर्स जो है वो उसने डिसाइड कर दिया और आपको बोला भाई साहब यू हैव टू अचीव दिस। तो ये वाली जो चीज़ें हुई ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरेटिव बजट। दे डोंट आस्क, ये आपके पास टॉप मैनेजमेंट से ही डायरेक्ट ऑर्डर आता है, यू हैव टू डन ऑल द आईटी इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट इन 10,000, whether it's right or wrong, he don't consider. He said that you have to procure in 10,000. तो अगर इस टाइप की बजट हुई तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरेटिव बजट। ठीक है। उसके बाद जो होते हैं दूसरे टाइप के जो बजट होते हैं वो होते हैं पार्टिसिपेंट, जिसमें हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, दे कम टुगेदर और साथ में अपनी अपनी ओपिनियंस, अपने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अपने फैक्ट, अपने अपने एक्सपेक्टेशन सबको साथ में रख के आपको बोलते हैं कि भाई साहब एक्चुअली फॉर आईटी के लिए मेरा बजट 12,000 का है, फॉर 12,000। सो जब ये बंदे अगर जब 12,000 का जब बजट हमको बताते हैं तो उनके पास सारी चीज़ें होती हैं और वी फिक्स द बजट फॉर 12,000। सो इट इज एन अचीवेबल एज वेल और दे विल बी मोटिवेटेड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ें होती है इसको हम लोग बोलते हैं ये अटेनेबल है, यानी the one who has, because the department has already done the R&D, research and development, they have already done the field work. Based on that, he has said that okay 12,000 I need for the IT infrastructure. So it is attainable also, that can be achieved and he will be motivated. But authoritative में क्या होता है कि वो अब उसको 10,000 में लेना है, तो अब उसमें क्या होगा, ये सिर्फ एक आइडियल स्टैंडर्ड वी कैन से दैट, बट इसकी जो सक्सेस की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम होती है, बिकॉज कि आदमी 10,000 में वो चीज़ें लाएगा तो वो या तो वो चीज़ें कॉम्पिटेबल नहीं होंगी या तो फिर उसको ऊपर नीचे करके लाना पड़ेगा। दैट इज अगेन
कि वो बाद में प्रॉब्लम देगा। सो वहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी सिर्फ एक ही चीज में अच्छी होती है, ये टाइम बाउंड होती है, पीपल कैन अचीव द थिंग, तो ये हमेशा टाइम बाउंड होती है। लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग होती है ये टाइम बाउंड नहीं होती, बल्कि यहाँ पे चीजें क्या होती है, यहाँ पे सबके ज्वाइंट कंसेंसस से चीजें होती हैं, तो हर चीज यहाँ पे ऐसी मोटिवेटेड होती है, सब लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो दिस हाउ, मतलब इस तरह हम लोग बजट का काम कर रहे हैं, हाउ दिस बजट वर्क एक्चुअली इन द रियल सिनेरियो। तो अंटिल नाउ आई बिलीव के चीजें अगर कोई टफ है या कुछ समथिंग विच आई हैव गॉन लिटिल फास्ट, यू कैन हाईलाइट मी। Fast or something, or is it okay? Fine, sir. Roshan bhai, is it okay? I think I could rest. हाँ सर, इसी kind of understand. It's okay na? Little bit fast. It's okay. It's okay. 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 But whatever we did till now, it's really practical things, and we all people do in our business somehow. We all are engaged if the people are working. If people are a student, then they may be a little difficult to understand. But if the people are working, this how we all are working. But this is just being, the drafted. So that's why it may be taking time to grasp it. But it's all we are doing actually in our life. So budgeting कैसे बनता है, budgeting में क्या कौन लोग काम करते हैं, budgeting के process क्या है, whatever we have discussed until now, it is very practical. और CM में जो है ना, वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें देगा, मतलब यू विल लर्न समथिंग। और साथ में जब आप किसी बंदों के साथ जब काम करेंगे ना, दे विल डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉन CMA एंड CMA, बिकॉज दे नो दैट ओके ये बंदा CMA करके रखा हुआ, मतलब इसके पास एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इसके पास उस चीज़ों का नॉलेज अच्छा होगा। तो दैट हाउ द CMA वर्क्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। तो यहाँ तक मेरी चीज़ें जो थी वो सब नॉर्मल सी थी। अब हम एक्चुअल कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में आते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेंगे चीज़ों को समझाने के लिए ताकि आप सबके लिए और हम सबके लिए वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, अभी एकदम जो सबसे लोअर लेवल बजट की बात हम करें, जो सबसे बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, अगर मैंने आपको बोला कि आपको आपके पास जो है वो ये है कि आपको लेबर आवर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 आवर्स रिक्वायर्ड है, 10 आवर्स रिक्वायर्ड है, और आपके पास एक स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है से 5। तो आपसे अगर हम पूछेंगे अच्छा बताइए कि टोटल लेबर कॉस्ट क्या बनेगा, सिंपली एनीवन कैन से दैट ओके 10 into 5 equal to 50। ठीक है, तो ये आसानी से कोई भी आदमी मेरे को बता देगा। दिस इज द वे ऑफ डूइंग लेबर बजट। लेबर बजट हम इस तरह से ही करते हैं। लेबर बजट, हाउ वी डू द लेबर बजट। तो लेबर बजट हम इस तरह से करते हैं। अब देखिए कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे बोल रहा है कि लेबर की जो इनपुट है पर यूनिट 0.5 है और मेरा स्टैंडर्ड रेट 12 है,
तो हमारे लिए मेरा टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 6 आएगा। सेम वे इफ आई से दैट मेरा मटेरियल 8 यूनिट लगता है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 फिनिश गुड्स, तो मेरे लिए और 4 रुपया उसका स्टैंडर्ड, 4 इज द स्टैंडर्ड प्राइस, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मी? For me the standard cost will be 32. So if I say that okay, now tell me the total standard cost for that unit, you can simply say that okay 38 rupees आपका total standard cost होगा for producing that unit. तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए भाई ये आइटम का स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बना, तो आप उसमें जो जो उनके अंदर इनपुट्स हैं या जो जो कंपोनेंट है आप उनकी कॉस्टिंग निकालेंगे एंड देन यू विल जस्ट सम इट, तो आपका उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट उस प्रोडक्ट का निकल आएगा, ठीक है। अब हम जो आएंगे वो थोड़ी सी इस पे आएंगे कि अब मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि आप जब स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करते होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी होंगी, क्या क्या चीज़ यू हैव टू कंसीडर इन योर माइंड व्हेन यू आर डिसाइडिंग सम स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट यू विल इन केस ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, तो आप सबसे पहले देखोगे क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मतलब वो इन्फीरियर है, सब स्टैंडर्ड है, गुड है, एक्सेलेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि इफ इट इज अ सब स्टैंडर्ड इट विल कंज्यूम मोर, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल व्हेन यू आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड। प्लीज mind it, this is the things which you should know. If you are setting the standard cost for the direct material, you have to think of the quality, because if it is a good quality it may not take too many inputs, but if it is a substandard or low quality, maybe it will taking more inputs to produce the same level of quantity, same level of finished goods. So quantity, and then it comes to the quantity, the numbers, because if you don't know the inputs numbers, it is not your standard cost setting will not be successful. Then supply chain cost means bringing from the vendor to your store what is the cost for material, what is the cost of that raw material, so that is what we call the supply chain cost. ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे। देन यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, सप्लाई चेन, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। यू नीड टू कंसीडर दिस। देन आफ्टर इट कम्स टू द डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर पे हमने क्या करनी है, हमको ये करना है कि मेरे को सबसे पहले चेक करना है व्हाट इज द आइडियल स्टैंडर्ड। तो इस काम को और लोग मार्केट में किस तरह से किस लेवल पे करते हैं और क्या आवर्स लगता है, फिर साथ में उसके प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी कि इतने ज़्यादा अगर सिंपल प्रोडक्ट है तो लेस लेबर रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है तो उसमें लेबर्स जो होंगे वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद इंडिविजुअल की आपको केस टू केस स्टडी करनी पड़ेगी, पर्सनल स्किल लेवल केस टू केस स्टडी करनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन दैट आप उसको काम असाइन करिएगा। तो जब आप डायरेक्ट लेबर ये करते होते हैं कि स्टैंडर्ड सेटिंग करते होते हैं तो यू नीड ऑल दिस थिंग्स। फिर आप टाइप ऑफ कंडीशंस ऑफ इक्विपमेंट देखेंगे, यानी जिस इक्विपमेंट या जिस सेक्टर पे या जिस जगह पे काम हो रहा है या जिस इन्वायरमेंट में काम हो रहा है तो वो आप इन्वायरमेंट फॉलो करेंगे। अगर इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी, या एकदम ठंडा जगह है तो भी प्रोडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर नॉर्मल वेदर कंडीशंस है या बाकी सारी चीज़ें सही हैं, इक्विपमेंट भी काम कर रहा है, अब सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग वेल, तो आपके लेबर्स की इफिशियंसी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। फिर नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपकी प्रोसेस की जो आपको अपने प्रोसेस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब इनपुट्स क्या कैसे आता है, उसके बाद वो फैक्ट्री में कैसे जाता है, फैक्ट्री में प्रोसेस का टाइम क्या है, उसकी इश्यू कैसे होती है, उसको हम लोग रिक्विजिशंस क्या रेज करते हैं, और बाद में ये फिनिश गुड्स में कैसे लगता है। तो ये ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कंसीडर व्हेन यू आर डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर लेबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द फैक्ट यू कैन नॉट मिस व्हेन यू आर डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट। इज इट ओके?
हेलो। जी हाँ बराबर है सर। यस सर। अब चलते हैं कि जब हम कोई स्टैंडर्ड सेटिंग करते हैं तो हमको कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। क्यों? हम जब स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेंगे तो फिर हम आप उसको जब हमको कोई कॉस्ट निकालना पड़ेगा, वी विल जस्ट यूज दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट, विल अप्लाई इट। तो सबसे पहले बोला जाता है कि ये जो इसकी एडवांटेज होती है, ये जो होती है ये थॉरो होती है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में यू हैव टू स्पेंड मोर। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है कि इसकी जो हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब ये रीजनिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस में क्या होती है कि हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री की सारी चीजें जो होती है ना, वो आपके फोरकास्ट के लिए रिलायबल 100% नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, ये इनएक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि आप फर्दर कोई नई चीजें नहीं करते, बल्कि आप एक हिस्टोरिकल डेटा से चीजें ले लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। यू डोंट डू द न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू जस्ट टेक इट फ्रॉम द हिस्ट्री। तो आपके लिए ये एडवांटेज का काम करता है। फिर क्या होता है, इसके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ये मार्केट में बहुत, चूंकि ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं ये मार्केट की रिक्वायरमेंट को मीट करता होता है, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग फ्यू फैक्टर्स देयर, तो जो कि आप ऑलरेडी मार्केट के चेंजेस को अकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है द हाई मे बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड। हो सकता है कि ये डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि आप जब एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे और कल के दिन आपके वेंडर ने प्राइस बढ़ा दी, तो आपको फिर उसको चेंज करना, उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दीज आर द मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड बेंचमार्किंग। ये आपके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, बिकॉज यू नो दैट ओके मेरा स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटा है किसी काम को कंप्लीट करने का। और जब आप काइजन कॉस्टिंग यूज करते हैं, यानी लाइफ में कोई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे व्हेन यू वर्क, तो आप क्या चाहेंगे, आप 8 से 7.5 लाना चाहेंगे, सो दैट आप जो है एवरीडे लर्निंग करेंगे। तो आप उससे क्या करेंगे कि आपकी इफिशियंसी अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी एक्चुअल वर्किंग टाइम चली जाएगी। तो ये आपको स्टैंडर्ड सेटिंग का एक फायदा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपने मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 8 घंटे में कर ली, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑल द टाइम, तो आप क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे। सो दीज आर द डिसएडवांटेज एज वेल। सो क्या होता है, ये बस एक छोटा सा आपके नॉलेज के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं। ये स्टैंडर्ड सेटिंग इज नॉट गोइंग टू कम यू नो एग्जाम, ये आपके नॉलेज के लिए थी कि आप जब कोई स्टैंडर्ड सेटिंग करते हैं तो आपके पास फायदा क्या होता है, उसके नुकसान क्या होते हैं, यू शुड नो दैट। अब आइए, हमारे पास एक एग्जाम का जो क्वेश्चन है, जो मतलब एग्जाम में ये एस्से में आता ही आता है, तो यू कैन नॉट मिस इट। इसको आप समझ के करें, और इट इज नॉट फॉर द बिजनेस, इट इज फॉर यू ऑल्सो। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जस्ट प्लीज लुक एट दिस। ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से वी आर डूइंग एवरी टाइम शॉर्ट एनालिसिस, वी हैव हर्ड इट समवेयर। हम लोग किसी भी बिजनेस मीट में जाते हैं तो बिजनेस मीट वाले बोलते हैं भाई वी शुड डू द शॉर्ट एनालिसिस फॉर दिस। कहीं भी चले जाओ ये लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस करो, शॉर्ट एनालिसिस करो। तो जो भी हम बजट्स बनाते हैं या जो भी काम करते हैं, जो भी प्लान करते हैं ना, उसमें हमको एनालिसिस जरूरी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ मास्टर बजट इज अ प्लान बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। अब जो मेरा मास्टर प्लान जो होता है वो हमारे लिए कंट्रोल ये करता है, एक स्ट्रैटेजी होता है जो हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करता है। ठीक है, अब उसमें एक स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं, दैट स्ट्रैटेजी कॉल SWOT एनालिसिस। SWOT, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट, T फॉर थ्रेट। अब इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास ऊपर का दो, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी इज द पॉजिटिव थिंग्स फॉर अस, बट वीकनेस और थ्रेट जो होता है वो हमारे लिए नेगेटिव्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारा ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। तो इंटरनल जो चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में है। स्ट्रेंथ ये हमारा अपना है, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम अस। वीकनेस हमारा अपना है, आई कैन ओवरकम। ठीक है, तो वीकनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा कोई वीकनेस है, मैं उसको स्टडी करूंगा, मैं उसको समझूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसको लर्न करूंगा, सही कर लूंगा। तो वो मेरा इंटरनल मामला है। ठीक है, और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, हमारी कोई स्ट्रेंथ है तो वो मेरे लिए बेहतर है, वो मेरा चीज़ है, क्योंकि मैंने एफर्ट लगाए हैं, तो वो मेरे लिए स्ट्रेंथ है। अगर कोई वीकनेस है तो हो सकता है कि मैं किसी चीज़ में वीक हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं हमेशा वीक रहूँगा, मैं उस पर चेंज करके आई कैन चेंज इट। तो ये हमारे लिए इंटरनल चीज़ें हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल्स हैं वो होती है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। किसी आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो दे वर्क वेल,
बट थ्रेट भी होता है कि इफ यू आर स्टार्ट डूइंग समथिंग और आपको पीछे से कोई पुल कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेट। तो आपको ये सारी चीजें एनालिसिस हमेशा करनी है। आप अपने लाइफ में करें, अपने स्टडीज में करें, अपने काम पे करें, अपने प्रोफेशंस में करें। यू हैव टू ऑलवेज डू दिस एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे कैसे खत्म कर सकते हैं, आप कैसे कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट एनालिसिस एग्जाम के क्वेश्चन है। तो मैं बोलूंगा इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप इसको समझ के पूरा पढ़ ले। ये क्या है कि इसको आप अगर एग्जाम में ये फोटो भी अगर आपने ये इमेज भी अगर बना ली, देन दे विल गिव यू द फुल मार्क्स। पहला क्या है, शॉर्ट एनालिसिस में 4 चीजें हैं। आपको देखना है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देयर इज अ 4 वर्ड्स शॉर्ट, उसका ये है शॉर्ट फॉर्म है। अब आती है कि हमारे लिए जो इंटरनल है वो क्या है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, ये मेरा इंटरनल मामला है। लेकिन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट हमारे लिए वो एक्सटर्नल है। अब देखना है मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, तो मैं स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मैं पॉजिटिव फैक्टर की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन जो हमारी वीकनेस या थ्रेट है वो हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो दूसरा है, जब मास्टर प्लान्स बनाते हैं तो इसमें तो एक स्ट्रैटेजी होती है, वो होती है शॉर्ट। अब हमारे प्लान्स हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो सकते हैं, या तो 5 to 10 ईयर्स हो सकते हैं, या कोई कैपिटल बजटिंग हो सकती है, और नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म प्लान्स हो सकते हैं। तो जब भी कोई हम मास्टर्स बनाते हैं, जब भी कोई मास्टर्स बजट बनाते हैं, तो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोलिंग आवर रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को राइट डायरेक्शन से एम्प्लॉय कर रहे हैं या नहीं, ये हमको मास्टर बजट बनाता है। उस स्ट्रेटेजी में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकती है, एक तो शॉर्ट एनालिसिस आ सकती है, दूसरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ सकती है, दूसरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आ सकती है। ये 3 चीज़ें आती हैं जब हम बोलते हैं कि मास्टर बजट हाउ हेल्प अस टू कंट्रोल आवर रिसोर्सेज, कैसे हमको हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमको बताता है भाई साहब, यू गो एंड डू योर शॉर्ट एनालिसिस। दूसरे बोलता है यू मेक द प्लान फॉर द 10 ईयर्स और वट एवर द कैपिटल बजटिंग यू आर डूइंग, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर दैट। और शॉर्ट टर्म में जो प्लान बना रहे हो वो आप, ये सारे हमको मास्टर्स बजट हमको गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इसमें आती हैं, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस हमारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अब हम आते हैं कि हमारा मास्टर्स जो बजट जो प्लान्स के कंपोनेंट्स है वो हमारे पास कैसे काम करते हैं, इसको एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास अगर हमने कोई एक प्रोजेक्ट, हमने कोई डिसाइड किया दिमाग पे, हमने कोई एक चीज़ सोचा है कि भाई मेरे को सेल अचीव करना है 25%, दिस इज जस्ट माई थॉट। अब मैं उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। This is first came in my thought, okay, I have to increase the sale by 25%. तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, पूछूंगा क्या ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है, क्या मैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में जो मैंने सेट किया है ये उसको सपोर्ट करता है। पहला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। अगर हाँ, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसके लिए देखेंगे कि एक काम करते हैं, अगर ये हमको नए मार्केट में जाके करना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग पे करना पड़ेगा। अगर हमको नए मार्केट बनाने पड़ेंगे, अगर नई दुनिया बनानी पड़ेगी, नया चीज़ बनाना पड़ेगा, देन यू नीड टू हैव द कैपिटल बजट। फिर आप जाके बगल में खड़े होके आप यू विल डू ऑल द NPV कैलकुलेशन, ऑल द PI, ऑल द थिंग्स यू विल डू देयर। वहाँ पे IRR निकालेंगे, वहाँ पे कंपैरिजंस करेंगे, देन इट विल, तब आप जाके काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, जैसे ही यू थॉट दैट यू विल इंक्रीज द सेल बाय 25%, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका क्या हुआ, आप पूछोगे क्या भाई ये मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे। फिर आप अगर आंसर आ गया यस, तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये क्या कोई मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स में जाएगा, हमको कोई नई मार्केट में जाना है, देन यू हैव टू डू द कैपिटल बजटिंग, यू हैव टू डू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू क्रिएट द न्यू प्लांट्स, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेक इट। अब जब हो गया, अब सीधा बात बोलेंगे, अगर ये हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, अगर मेरे को इसी साल में हम 25% अचीव कर लेंगे, तो हो सकता है कि हम किसी सेल्स पर्सन को हायर कर लें जिसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल हो, वो बंदा हमारे साथ एसोसिएट हो जाएगा, वो हमारे लिए मार्केट कर देगा और हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। फिर हम एक मास्टर बजट बनाएंगे और साथ में हम सेल्स का, स्टाफिंग का बजट इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जब सेल्स इंक्रीज करना है तो हमको रॉ मटेरियल साइड को इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा, साथ में हमको सेल्स वाला साइड भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? हमको साथ में ये भी कंट्रोल करने पड़ेंगे कि ये बंदा जो हमको हेल्प करेगा, जो सेल्स से रिलेटेड जो फंड इंक्रीज करना पड़ेगा सेल्स स्टाफिंग के साथ, ये इंक्रीज करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट कि सेल्स के टारगेट हमारे अचीव हो रहे हैं कि नहीं। इस बात को एज अ कंट्रोलिंग पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे।
और फिर बाद में आपको जो सारी चीज़ें जो हैं आपको ऑपरेशंस पे काम करने पड़ेंगे, हायर, ट्रेन, इवैल्यूएट, सेल्स रिजल्ट, ये सारे काम आपको डे टू डे बेसिस पे करने पड़ेंगे एज अ कंट्रोलिंग टूल्स की तरह, और आपको मॉनिटर करके आप उसमें जो भी चेंजेस आएंगे आप उसको सजेस्ट करेंगे। तो जैसे ही मेरे ध्यान में जैसे ही मैंने ये सोचा कि आई हैव टू इंक्रीज द सेल बाय 25%, तो मेरे को ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा टू माई सेल्फ। इसके लिए हमको समटाइम वी नीड टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट, कि हम जब कोई भी चीज़ बोलते हैं या कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो हम साथ में उसमें इफ वाला जो कंडीशंस होता है उन सारे हम उसको इफ कंडीशंस को वैलिडेट करते हैं कि अगर ये पहला मैं बोला कि हाँ भाई मैं पहला 25% सेल अचीव करना चाहता हूँ, अच्छा फिर हमारा क्वेश्चन आता है अच्छा तो फिर आप बताएं कि ये आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ मैच है, तो हम बोलेंगे हाँ जी मैच है। फिर बोलेंगे अच्छा ये लॉन्ग टर्म में हमेशा चाह रहे करना है या कोई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो हमने बोला नहीं लॉन्ग टर्म है। तो उसने बोलेगा अच्छा ठीक है, तो उसके आपको एक नई सेटअप्स डालने पड़ेंगे, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नई अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर अच्छा वो शॉर्ट टर्म है तो एक काम कर लो कि ये साथ में दोनों सिचुएशंस में हम आप आ जाते हैं, बोलेगा ठीक है भाई सेल्स के स्टाफ को हायर कर लो, अपने पास फंड को इंक्रीज कर लो, ताकि हो सकता है कि आपके पास मटेरियल ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें, और फिर साथ में अपने ऑपरेशंस को भी आप इंक्रीज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो ये आपके मास्टर बजट के कंपोनेंट्स है। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल्स है हाउ द मास्टर बजट्स वर्क्स टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ें हमने यहाँ पे आके इस चीज़ों को समझा है। तो यहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको लगा कि नहीं भाई मुश्किल जा रही है? हेलो हेलो जी जी, सब नॉर्मल है, बराबर है सर। सही है सर, आपने ऐसा एक्सप्लेन किया। बराबर ही है ना? सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करने समझ में आएंगे और आपको फ्लो समझ में आएगा हाउ द बजट्स वर्क। तो ये चीज़ें मैं बताऊँ पहले सोचा कि आपको सेल्स बनाने हैं, आपको ये कि वो आपकी बाकी सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई। तो आपके जब सेल्स बजट बने फिर आपने अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रोडक्शन या प्लान परचेज बजट बनाएंगे, और प्रोडक्शन बजट जब बनाएंगे तो फिर आप ये सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे, रॉ मटेरियल, लेबर्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारी चीज़ें आप एक साथ में कंसीडर करेंगे। उसके बाद में सबको जब आप कंबाइंड कर लेंगे तो वो जब कंबाइंड होकर चीज़ें आएंगी तो आपके COGS बजट्स बनेंगी। फिर उसके बाद जो चीज़ें आएंगी फिर आप साथ में जब जैसे ही सेल बजट करेंगे तो सेल के साथ आपको सेलिंग बजट भी चेक करनी पड़ेंगी। सेलिंग बजट, एडमिन बजट, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। इसको इनकॉर्पोरेट करके, ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके आप अपने इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और इधर में अगर कोई आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है, कैपिटल बजटिंग आएगी, कैपिटल बजटिंग में आपकी कैश रिक्वायरमेंट पता चलेंगे, और इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी लास्ट में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या बजटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस फ्लो है, कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। तो अगर आपको कोई यहाँ तक में चीज़ें सब कंफर्टेबल हैं तो आप बोलें। हेलो, यहाँ तक में चीज़ें Fine, sir. कंफर्टेबल है? Yes, sir. कंफर्टेबल, परफेक्ट। कंफर्टेबल। चलें, अब हम आएंगे, अब क्या हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते क्या? क्या बोलते हैं? Okay, sir. Just for 5 minutes, not even 5 minutes, 3 minutes. Okay. या प्लीज टेक इट, लीजिए सर।
मेरे स्कूल में तो हाँ, हाँ। 11:20 ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग टुडे, इट्स जस्ट 11:30 का मिनट होता है मेरे। ठीक है, 3 to 4 hours जर्नी है, वी हैव टू गो इन सच अ वे दैट वी कैन लास्ट फॉर 3 to 4 hours. चलो, देखिए सबसे पहले हम लोग अभी तक यहाँ पे जो खत्म किया था, वी वर हियर द मास्टर बजट के फॉर्मेट पे थे। हम समझ रहे थे कि मास्टर बजट जो है वो हमेशा सेल्स से स्टार्ट होता है और सेल्स के बाद वो प्रोडक्शंस को वो करता है, मतलब सेल्स जब हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम प्रोडक्शंस पे जाते हैं और फिर प्रोडक्शंस जो है हमको रॉ मटेरियल, रॉ लेबर्स और ओवरहेड का बनाना पड़ता है। ये सबको जब कंबाइन करते हैं तो हमारा COGS बजट्स बनता है और साथ में सेल्स का बजट बेस्ड ऑन सेल्स के नंबर्स पे होता है। उसके बाद हम एडमिन का बजट बनाते हैं, फिर ओवरहेड, फिर अदर बजटेड इनकम बनाते हैं, फिर बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना लेते हैं। इस तरह हमारा मास्टर बजट का मैंने एक फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस किया था। नाउ अब हम एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग बजट्स में क्या क्या बनते हैं और साथ में फिर हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम जो ऑपरेटिंग बजट्स पे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, हम सबसे पहले एक सेल्स की फोरकास्ट बनाएंगे और सेल्स की फोरकास्ट जो होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि उसके पीछे सारी चीज़ें उसके बाद चलती हैं, तो द सेल्स बजट शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि ये सारे मतलब ऑल द बजट जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है सेल्स के साथ। तो अगर सेल्स का बजट सही नहीं है तो फिर सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। फिर आपने बजट बनाया, फिर आपने प्रोडक्शन या इन्वेंट्री बजट बना लिया, फिर आपने रॉ मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड के बजट बना लिए, फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजट बना लिए,
सेल्स एंड एडमिन का बजट बनाया और प्रोफोर्मा इनकम स्टेटमेंट में। ये सारे बजट जो है ना वो आपके ऑपरेटिंग बजट्स पे आते हैं। ये जो जितने बजट हैं ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग बजट पे आते हैं। सो ये whatever the budget we are studying now, ये सारे के सारे बजट्स ऑपरेटिंग बजट्स में आते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कि इसके बाद क्या। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन बजट हम कैसे बनाएंगे और उसके बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले उस बजट बनाने के पीछे की लॉजिक समझनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताता है कि आप कितने रिसोर्सेज रिक्वायर करेंगे। ये इट हेल्प्स द बजट, जो आपके प्रोडक्शन बजट होते हैं, ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए। साथ में आपको बताता है कि आप जो है अपने सेल्स के टारगेट को कैसे हेल्प because if you don't have the sufficient production, if you don't have the sufficient 1000 हमें forecasted budget you wanted to maintain करना है, you are just trying to maintain it, trying to maintain the so it means you how many actually unit required 174,000 unit required। उसके बाद क्या आता है, आपके पास जो होता है ना वो आप मान लीजिए कि कोई एक बिगनिंग इन्वेंटरी दी हुई है कि आपको एक 14,000 की बिगनिंग इन्वेंटरी है। ठीक है जी। अब आप उस इन्वेंटरी को आप माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस शीट लगाएगा प्रोडक्शन बजट पे। हेलो, इज देयर एनी डाउट ऑन दिस बजट? मेहराज भाई अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं लेट ज्वाइन हूँ। कोई नहीं, मैंने बोला कि आपके पास कोई एक आप प्रोडक्शन बजट जब बनाते हैं तो फर्स्ट यू शुड नो द लॉजिक। हेलो, हेलो, व्हाई यू आर मेकिंग, तो आप ये करना चाहते हैं कि आवाज नहीं आ रही है? मेराज भाई आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है मेहराज भाई। एक मिनट, मैं उसको अभी आ रही है अभी? हाँ अभी क्लियर है। अच्छा, हेलो, 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 हमारी जो ब्रेक हो रही मेहराज भाई आवाज़। हेलो,
हेलो। एक मिनट मैं